It's really wonderful to start this event flow. This auspicious day. Today is the full moon, and I'm sure, Ashwin, your production is really going to be as bright and luminescent as this moon for years to go, I hope. So I wish you well on this journey, and I feel that all the actors as well as all those who have contributed to the creation of this production will be thrilled at the super success of this production. And I feel that we are starting this entire journey with a very noble cause, a charity which is absolutely dear to Ashwin's heart as well as, of course, to mine. We've created Light of Life Trust, a foundation in India and US where children who are underprivileged in rural India. See, there are many NGOs all over the urban part of our country, but nobody really wants to venture to the deep down dark villages of India. So what we have is more than 2 lakhs of children today who have undergone education, a personality transformation, and then finally a vocational choice which has made them absolutely self-sufficient and independent. So the whole idea is that we need to create a generation of youth who will really be the breakthrough generation for our poverty cycle in the country. And we've succeeded. So today these children are earning as a starting salary more than about 20,000, 8,000 to 10,000 rupees, whereas the parents today, after years of toiling and laboring, are earning just about 3,000 rupees. And a family of 5, 7, whatever, to manage. So these children really have created an absolute magic in their life. Their entire life is changed and transformed. And to see each of those success stories really brings tears to one's eye. One is a professional engineer today who was managing a tea shop at the age of 10, having started it to earn a living because he didn't have both the parents. And then another one who was selling flowers in a kind of mandi, place, bazaar. And suddenly now today she is working at Wellspun as an executive. Can you imagine the leap from a village where there are no lights, nothing available, where there is absolutely no ray of hope at all? From there to this kind of a magnificent life. And these stars or superstars, as I call them, are all my children. And I love them and absolutely cherish them and try to do such a lot for them. And Ashwin has always joined hands with me to support this entire charity. And I'm proud today that all of you are here who will create greater awareness, because there are 4.5 crore children who are school dropouts at the age of 8th standard. At the 8th standard level. Because government stops supporting the education at that stage. So they have no means except to become either laborers or to work as a domestic servant or in some hotel, a menial job or whatever it is, and that would have been their life. And to imagine that from that to this leap is a big task, big change. So, I really thank all of you that through this particular platform, more than 1,000 children will get their education and become a generation to break poverty cycle. Thank you very much. Sir,
writer, director, passion. Many more things which I'd like to say, but I'll let him say the word. Thank you. Writer, director, fine. Talking, biggest issue. So, I think it's been surrounded by previous people. Some will be better, some will be better. So, I'm speechless, so you can just forgive me for that. But in 1.5 years, I've been working on this for the last 1.5 years, figuring out how to do Devdas for the stage. I mean, that was the sole purpose. वो अर्जुन मछली वाला जो concept था कि मछली की आँख, the work has been like that, and he's been very kind to hold my hand, be with me all along, and फिलहाल मैं नहीं कहता हूँ, और and as it happens, I talk for him. Umang, I've known him for so many years, like a brother. He designed Alchemist, Paulo Coelho's Alchemist, for us the first time, and I just was struggling to find the right person who has the right sensibilities to do some of this, and I couldn't think of anyone else but Umang. So Umang, if you could say a few words. Yeah. Ashwin, thank you for giving me this opportunity, and like I know from the longest years that I know myself, I thought I was born in a theatre, you know, and literally born in a theatre, because my mom used to stay in Chennai, Madras at that time, and her house was adjacent to a theatre. The balcony would come out in a theatre, so her life was theatre. And from my childhood, I've been always on acting in theatres, and throughout, acting was my passion. When it happened that I had to go behind the scenes and started designing the sets, obviously that passion just came out in me, like, okay, I can act on the stage, so what all I require, I used to design myself. And that led on to, you know, designing anything and everything that I've done throughout my life. When Ashwin gave me this offer, okay, you know, design and make this Devdas, which is done for so many years. You know, different people have attempted it and done it. Now, Brave Self has come on board, and and you know, when he came and narrated the story, I said, okay, this is something new. This is some new style of making. And on theatre, it's for the first time, so I said, why not? Let's give it a try. And I'm just designing it, and my guys will be making it. But yes, what new can we offer? That's what I'm here for. And because we've done everything possible in theatre, so we challenge ourselves, and you know, he challenges me, I challenge him, and okay, ऐसा करेंगे तो कैसे लगेगा? And that's how maybe we're trying to, you know, reinvent a theatre that you've seen before. And somehow you succeeded, and hopefully you all will like it. Thank you. You know, besides designing the production, we were struggling with the logo, the right inspiration for the logo. We got the best teams to sit down and do it. We got so many variations of it, just wasn't right. So our head of production, Ava, said, listen, we should talk to Umang to design the logo. So this logo of Devdas has been designed by Umang and his team. In a matter of 48 hours, 21 different logos were presented to us. And this one appealed. I mean, then we got debating for 5 days to figure out which one, because we were confused. One was better than the other. But this one spoke the story more than anything else. There's a lot that goes into this logo, which Umang has taken from the script. So that's what it takes a real good designer, then he understands the pulse. And that's exactly what he's done. So this one logo tells you volumes if you look at it really closely. The next person who's
very, who's not spoken too much about, who's a diamond in uncut diamond, is Parvesh Singh. I mean, he's probably, I think, one of the most remarkable music composers, and nobody has actually unveiled his work, and I think Devdas is going to be that huge platform. Sensibilities, understanding from a content perspective, design of music, creating music, the right instrumentation. In fact, a lot of people that I made listen to music, they said, really? And I think it's going to grow on people. So I'd like Parvesh to say a few words, yeah? Hello. Yeah, thanks a lot, Ashwin. सबसे पहले सैफ सर एंड अश्विन बहुत थैंक्स इन लोगों का जो मुझे चूज़ किया इसके म्यूज़िक के लिए. वी स्टार्टेड ऑन द म्यूज़िक आई थिंक year and a half back, and Seth he gave me around 12 songs to compose, all on different situations. तो हम लोगों के पास ये भी बहुत बड़ा एक चैलेंज था कि पहले जो मूवीज़ बनी हैं या उनसे हम लोग कैसे अलग करें, क्या करें. सो 1-1.5 साल तक हम लोगों ने म्यूज़िक के ऊपर काफ़ी काम किया. राग बेस्ड बनाए, ठुमरी के ऊपर बनाए हैं. वी हैव डन सिम्फनी इन चेन्नई फॉर देवदास. तो लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव डन इन म्यूजिक. एंड अश्विन थैंक्स अ लॉट. उसने हम लोग को ऐसा बजट दिया कि हम लोग हर कुछ सारी पॉसिबिलिटीज हम लोगों ने जो भी थी की. सारे अच्छे सिंगर्स हम लोगों ने इसमें दिए. तो थैंक्स लॉट अश्विन एंड थैंक्स लॉट सर. एंड या थैंक्स. The budget, now I can tell you the budget, but budget is, I've had to fight for every single rupee, but that's the way we do work. Bertie and Shampa, I just feel that, I mean, there were people that we were looking at, but the kind of passion that Shampa and Bertie showed at every step of the way, and the kind of time commitment that's probably required. There are very few people who go up in life and they stop right there. These guys keep growing, and we're very exacting. We're very demanding as producers and director too. But this is something that we feel that these two could only achieve this because the kind of contemporary style that we're looking at, which is going to be appreciated not only by Indian audiences but international audiences. They are the ones who are the perfect fit. So I'd like them to say a few words about this. Hello everybody. Thank you, Ashwin sir and Saif sir, for having Bertrand and me be a part of Devdas. It's almost like it's a dream come true, because we've grown up listening to these stories. Devdas has been a huge inspiration for the two of us. And the story that Saif sir has written, so close to the original, but yet so different. And I think that is what challenged us. That is what made us so excited about the whole process. And we're very fortunate to have working with everybody who's a part of this project, because it's a great experience for all of us, sharing and developing this together. Big hello to everyone, and I think I'd like to sincerely say thank you to Ashwin letting all this happen. I really believe that life has a beautiful way of bringing people together. Whatever the reason might be, a beautiful project like this, bringing like-minded artists together, I think this symphony of energies is what creates something special. And I mean, us people over here, and also all the wonderful cast, and also definitely the amazing crew which will bring this all together. It's almost like a very big Avengers team over here of fantastic people with their fantastic powers coming together to make something special. So I just like to say thank the universe for making this happen. Congratulations to all of us as a wonderful team, and I just hope we all shine out wonderfully in what we do. So God bless to everyone. Shell is one important ingredient of the team.
of singers. We have Suresh Matkar, we have got Shan, Alka Yagnik, Bhumi Trivedi, Antara Mitra, who are part of the singing team of this production. So I'd like to share, I'm his fan, so that's why I kept the best for actually the last. And I'd like him to say a few words. गाने के लिए बना हूँ, मैं तो गाना ही गाता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस नए वेंचर के लिए। सैफ साहब आपको ईजी प्रोडक्शंस, उमंग, परवेश आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वही मैंने बोला गाना गाता है। पास का पंछी कुछ भी नहीं, आरज़ू जीने की कुछ भी नहीं, तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना जीवन कुछ भी तेरे बिना जीवन कुछ भी नहीं, पास का पंछी। Thank you. Thanks, we're just going to show a little making piece to see how we made all the actors and dancers struggle. Right after this, I will call all the actors to come and sit in the dais, and then everybody can talk to them. Yeah. Is everybody there? Yeah. I have two of my actors, three of my actors are not here today. One is Bhavna Pani and Sunil Balwal. So I will at some point and get them on video, and we will speak to them too. Yeah. So Gaurav, we'll start with you, man. मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ ये सोच रहा था रास्ते में कि मैं जब ये माइक मुझे पकड़ाएंगे तो मैं क्या कहूँगा, और बहुत तकलीफ है इसके बारे में कुछ कहना, क्योंकि इतना कुछ है कहने के लिए, इतना कुछ है कि कभी कभार आपको लगता है कि कुछ ना कहूँ तो बेहतर है, पर क्योंकि आज हम कहने के लिए ही आए। थैंक यू Saif sir, first of all, Ashwin. I think this is one of those, as actors, हम लोग अपने parts चुनते हैं जब हमें वो offer होते हैं। I think ये वो part है जिसने हमें चुना है, and एक बहुत crazy सी feel है, ऐसा लगता है that everybody here was destined to be here. It's almost like जिस तरीके की अनमिट कहानी देवदास की है, उसी किस्म का कुछ एक
कनेक्शन सबका है इस कहानी से, और इसीलिए हम सब यहाँ हैं। हो सकता है कि मैं आधा देवदास बन गया हूँ इसलिए ऐसी बातें कर रहा हूँ, बट दैट इज व्हाट आई जेन्युइनली फील। एंड इस डेस्टिनी की कॉल के लिए एक बार फिर मैं सबको थैंक यू कह देता हूँ। इतना जादू है इसमें, इतने अलग अलग किस्म का जादू, कहने वाला, दिखाने वाला, सुनाने वाला, महसूस करने वाला, हंसाने वाला, रुलाने वाला, कि मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप एक बार आइए और वो जादू आपके सिर पर नाचता रहेगा अगले 6 महीने। उस 6 महीने के फ्री के नशे के लिए एक बार आइए। थैंक यू। गौरव ने एटलीस्ट ट्रैफिक में बैठे बैठे सोचा क्या बोलना है मैं बिल्कुल कुछ सोच के नहीं आई। I just want to thank Seth sir for making me a part of this production, and Ashwin, of course. I feel extremely lucky to be a part of this amazing show, and as Gaurav said, it is going to be magical on stage. The way Seth sir has directed it, the way the music has come along, the way Shampa has brought in so much life on stage with the dances and the choreography and the wonderful performances by the entire star cast. I think it's going to be a grand show, and I really hope and pray, and actually I'm sure you all will love it. नमस्ते आप सभी को और शुक्रिया ये हमारे इस पागलपन में आप शामिल होने आए हैं। द डायरेक्टर इज हियर, तो मुझे रिहर्सल्स की याद आ गई। मैं सुखदा खांडकेकर पारो का किरदार अदा करने की कोशिश कर रही हूँ, और जैसे कि गौरव ने कहा हम लोग सभी लगभग आधे अपने कैरेक्टर्स बन चुके हैं, तो बह की बातें करते रहते हैं बह की बातें करते रहते हैं। मेरे ख्याल से देवदास मेरी जिंदगी में इसलिए आया है क्योंकि ये एक लाइन है जो हम लोग यूजुअली सुनते रहते हैं कि अधूरा प्यार जो होता है उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है, और ये हमेशा हम सुनते हैं और सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे पारो बन रही हूँ मैं और जहाँ मैं पहुँची हूँ, मेरे ख्याल से देव पारो का नाम कभी लैला मजनू, जूलियट, रोमियो इनके साथ लिया नहीं जाता, लेकिन लिया जाना चाहिए, क्योंकि किसी के प्यार में आप बर्बाद हो जाए और वैसे जीते रहे, चाहे वो चंद्रमुखी हो, चाहे देवदास हो, चाहे पारो हो, और अपनी अपनी किस्मत उन्हें जहाँ ले जाती है एक प्यार के चलते, ये बहुत बड़ी बात है। सो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। आई एम ब्लेस्ड, एक्सट्रीमली ब्लेस्ड टू हैव सैफ एज द डायरेक्टर, जो आपके पर्सनालिटी के और आपके टैलेंट्स के हर पहलू को पहचानते हैं और आपको एज तक पुश करते हैं, उस एज तक जहाँ पे आप खुद नहीं जानते कि यहाँ पे आप पहुँच पाते हैं। आई एम ब्लेस्ड टू हैव शंपा एंड बोडविन एज आर कोरियोग्राफर्स, बिकॉज हमें इतनी खूबसूरती के से लफ्स अगर मिले हैं तो मूवमेंट्स और मैजिक आप दे रहे हैं। आई एम एक्सट्रीमली ब्लेस्ड टू हैव दिस वंडरफुल को एक्टर्स टीम, जिनके साथ हर दिन एक नया मज़ा, नया मैजिक, एक प्रेशियस पल मुझे मिलता है। और अश्विन, थैंक यू सो मच हम सबको एक साथ लाने के लिए, क्योंकि आप ये नहीं करते तो ये सब बन नहीं पाता। परिवेश जी, आपका म्यूजिक हम दिन ब दिन पागल होने के ज़्यादा करीब पहुंचाने वाले जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि ये खूबसूरत चीज़ आपने हमें गिफ्ट की। थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्मिता जी को मैंने बहुत कन्विंस किया कि प्ले ना करें। Hi, good evening everybody, and I'm very happy that I'm doing the play. You were not so good at convincing me. In fact, जब मैं पहली बार रीडिंग के लिए गई अश्विन के ऑफिस में, तब सैफ सर ने मुझे एक ही सवाल पूछा, ये इतना छोटा रोल है तुम क्यों करना चाहती हो? I said, रोल छोटा बड़ा उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, but a couple of reasons why I wanted to do this show is first is I know Ashwin
for many years. I've done so many shows with him, many years. It's almost more than 20-25 years that I know him. Secondly, I have done a lot of theatre, lot of movies, lot of serials, सब कुछ हो चुका अभी. I wanted to be a part of this grand show. That was the reason why I selected. I said no, I will do it because छोटे shows तो किए हैं मैंने बहुत सारे, but not at this grandeur and this ostentatious kind of a presentation, which was what lured me into it. And I have seen Saif sir's previous plays, so मुझे पता नहीं था उनके बारे में, मैं जानती नहीं थी उनको personally. जब उन्होंने मुझे बताया कि these are the plays that he's done, one was with Shekhar Suman and Dipti Nawalwala, एक मुलाकात, तो ये सारे shows मैंने देखे, सतीश कौशिक वाला भी मैंने देखा. तो I used to wonder, I said, my God, director हर जगह पे इतना दिखता है, यहाँ पे कौन है मुझे नहीं पता था. The latest one I saw was Mirror Mirror, Manisha Lamba's. I said, my God, I mean, then I knew who he was, but you know the performances that he's got out of it was excellent. From the time of reading the script till yesterday, the whole play every time jumps up every 6 inches. Yesterday I said, oh my God, what is happening here? Every actor jumps up 6 inches every day. कुछ ना कुछ नया हो जाता है हर किसी के साथ. I'm sure all of us will agree with this, that every day some new पहलू निकल आता है हर character का. I said, oh my God, this only somebody, I've never worked with somebody so sensitive on stage, very honestly, with due respect to all my directors. Somebody so sensitive कि हर दिन एक नई कुछ चीज निकल आती है हर character में, और performance करने में बड़ा मजा आता है. So this is also a few reasons, sir, why I am doing the play, and I will continue to do it. So I'm really enjoying the whole grandeur of the whole thing, and I love all these children of mine. I'm a mother India. Whatever, I've always played everybody's mothers, and I get very protective about my children. So I love the whole, yesterday Komal and I were saying that the whole energy of the whole cast is very nice at the moment. You know, पूरी family की जैसे अभी से ही बन गया है, तो आगे चल के तो हम पता नहीं क्या करेंगे. Thank you so much, Ashwin, once again for having cast me for this role. Sir, Saif sir, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. And everybody else, I have not danced with Champa. I don't even try because you'll forget dancing if you try to do that to me. So thank you very much for all of you being here, and I'm sure this will be something. One more thing, the other day when I was giving the interview, somebody asked me, the gentleman asked me, I probably am the only Kaushalya who played the movie and the theatre. Up till now, जो भी सिनेमा हुआ है उसके नाटक बने नहीं हैं. एक था मुगल आजम, उसमें तो फिल्म का कोई भी कलाकार नहीं, बट यहाँ पे हम लोग ओनली सो फार कौशल्या जो फिल्मों में वही रोल मैंने किया है, और अभी भी यही रोल में कर रहा हूँ. So great, no special. Thank you so much. Sunil Parwal is in Paris right now, so as you know, we don't like to miss out on any of our cast. I'm Yaman Chadwal, and I play Devdas in the play. I'll quickly wrap my thing up. Devdas is like a jigsaw puzzle. बहुत सारे parts हैं जो एक साथ जुड़े हैं, जिन पे सब पे अपना अपना नाम लिखा हुआ था, जो eventually destined थे आने के लिए. मैं बहुत खुश हूँ. I'm very proud and very happy with the fact कि उसी कड़ी में कहीं ना कहीं मेरा भी नाम था in that jigsaw puzzle. And like to thank Saif sir and Ashwin sir for this opportunity, and see you at the theatres. हेलो, मैं संजीव त्यागी. सैफ सर ने मुझे चुन्नी लाल के लिए चुना है, और मेरी कोशिश है कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं. थैंक यू सो मच सैफ सर. और इतनी हिट और इतनी फेमस स्टोरी का एक पार्ट बनाने के लिए इतने अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका दिया आपने. बाकी सब बोल ही चुके हैं, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच. और सैफ सर की ही बात दोहराना चाहूँगा कि हम बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, और हम सभी को इस वक्त मछली की वो आँख दिख रही है, और सिर्फ आँख दिख रही है. और जैसा कि गौरव भाई ने कहा, आप देखेंगे तो हाँ, 6 महीने नशा तो रहेगा. So that's camera.
Okay. Done. Thank you. Thank you. Thank you. यहाँ पे भी सोलो सोलो मुझे पता चला इसलिए मैं कह रही हूँ मेरे नोज पिन से ज़्यादा ज़रूरी होती है नहीं Have to go? Which camera are we looking at? Center. Okay. Hindi, English? गौरव सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन एक नई वे में आने के लिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप थिएटर से जुड़े? मैं एक्चुअली शुरुआत से ही थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ। दिल्ली में शुरुआत स्टेज से ही की थी और टेलीविज़न की जब शुरुआत की तब उसके बीच में साउथ अफ्रीका चला गया था एक ब्रॉडवे प्रोडक्शन करने के लिए, फिर बम्बई में की अश्विन के साथ, और बीच में पिछले 8 साल से एक चुपके से एक कॉमेडी प्ले करता आ रहा हूँ। तो स्टेज से मैं कभी अलग होता नहीं। मुझे मेरी बैटरी का चार्जर लगता है वो, कि जब भी मुझे अपनी एक्टिंग बैटरी को रिचार्ज करना होता है तो मैं स्टेज के पास चला जाता हूँ। और आई थिंक एक अच्छे वे में एक नई शुरुआत करने का मौका मिलता है स्टेज पे एक एक्टर को, और वो सारी बातें पीछे छूट गई बिकॉज इस शो में तो फिर शुरुआत नहीं, हम पिछले जन्मों में चले गए हैं वापस से शुरू करने के लिए इस कहानी को। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जितने पैशन से बनाया जा रहा है और जिस पैशन से आपको दिखाया जाएगा, आई एम श्योर वो आपके पास रहेगा। वो नशा, वो कहानी, वो संगीत, वो नृत्य, जो मौसीकी है, जो क्रेजीनेस है देवदास की, वो आपके साथ रहेगी। मेरे पास, मैं बोलता रहूँगा, अभी आप लेडीज से बात हमने बहुत इन्जॉय किया है ये प्ले रिहर्स करते टाइम। आई थिंक सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रोल ऑफ कोर्स देवदास का है, क्योंकि उन्हें इतने इमोशनल वे में डील करना पड़ रहा है हर एक दिन, मतलब ही हैज़ टू बी इन द सेम trauma and everything, you know. So I think emotionally it's been extremely draining for actually both Devdas and Paro. And जिस तरीके से मॉडेस्ट प्ले करेगी। अच्छा, मतलब हम बीच में टोके नहीं, चंद्रमुखी का भी कहा। हाँ, वो आप बोल दो। चंद्रमुखी नहीं, पर ये कहानी चंद्रमुखी से शुरू होती है और एक वजह से शुरू होती है। और हमारी कहानी में ओरिजिनल देवदास में अगर आपको हमेशा ये शिकायत हो, जो मुझे रही है, कि देवदास पारो का रिश्ता दिखता है और देवदास चंद्रमुखी का रिश्ता बड़ा अधूरा सा लगता है, समझ में नहीं आता कि क्या है। इसमें आपकी ऐसी कोई शंका नहीं रही। पर मुझे ये लग रहा है कि इस वाली कहानी में आपको देवदास की कहानी से जितनी खलिशें होती हैं, जैसे एक पहलू इन्होंने कहा, या एक पारो का क्या हुआ, या आप जब देवदास देखने आते हैं तो आपको पता होता है कि एक दर्द लेके आपको घर जाना है, ये सारी खलिशें मिटाई दी है हमारे डायरेक्टर ने। आई एम श्योर आप एक सुलेस और एक अपने ही तरीके का एक पीस, एक नया पहलू लेकर घर जाएंगे और इतना सुंदर म्यूजिक लेकर घर जाएंगे कि वो आपके जहन से छूटेगा नहीं। तो हमारा म्यूजिक एक अलग एल्बम के रूप में आप लोगों के सामने आएगा, उसे ज़रूर सुनिएगा। हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप हमें उस म्यूजिक के लिए थैंक यू कहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, टाइमिंग क्या कुछ बता, जिस पे सबसे ज़्यादा वर्क करना पड़ता है? आई थिंक थिएटर ऐसी कोई बात डेफिनेटली नहीं है, चाहे वो तीनों मीडियम्स हो, टेलीविज़न हो या फिल्म्स हो या थिएटर हो, अपने किरदार को समझकर वो बन जाना और उसे ठीक तरीके से निभा पाना, जिस तरीके से आपकी कहानी चाहती है,
ये सबसे बड़ी बात है मुझे लगता है। और हाँ, थिएटर की अगर बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे क्योंकि टेक रीटेक्स होते नहीं हैं, आप ये कह नहीं सकते कि ये लाइन मैं फिर से कहूँ या सॉरी गलती हो गई, तो आपको वो चलते रहना पड़ता है, वो करते रहना पड़ता है। तो एक प्रोसेस रहती है हमेशा। और पर मोर देन चैलेंज मुझे लगता है वो प्रोसेस बहुत सुंदर है और वो आपको जोन में रखती हैं। सो दैट्स समथिंग, वो एक नशा है जो इंटरेस्टिंग है बहुत। आपके हिसाब से क्या है? यार ये वाला प्ले आप आधे मन से, हम एक्टर्स की ना आदतें होती हैं रोल करने के बाद, और ख़ासकर अगर आपको किसी रोल के लिए शोहरत मिल जाए तो आपकी कुछ हैबिट्स बन जाती हैं। आप एक टोन में बोलते हैं, आप एक तरीके से खड़े होते हैं। इस प्ले में वो सब भूलना पड़ा। ये सचमुच एक नई शुरुआत वाली बात है जहाँ पे आपको ये भूलना पड़ता है कि आप एक एक्टर हैं और आपको अपने बचपन में जाना पड़ेगा और आपको अपने अंदर सोल में ढूंढना पड़ेगा उन रिश्तों के बारे में आपकी क्या फीलिंग्स हैं। और ये उस पागलपंती के बिना नहीं हो सकता। सेट पर एक मजाक है कि ये पीपी प्रोडक्शंस हैं, पागलपंती प्रोडक्शंस, क्योंकि ये उस पागलपंती के बिना नहीं हो सकता। ये किसी स्टाइल के चलते नहीं काम चलेगा, ये मेरी आवाज़ के चलते नहीं चलेगा, ये किसी भी बात से नहीं चलेगा, ये उस पागलपंती पे ही चलेगा, उस पैशन से ही चलेगा। और सब उसमें डूब गए हैं। अब 2-4 महीने के बाद अगर आपको खबर आए कि हम सब किसी ना किसी साइकेट्रिक हॉस्पिटल में आए तो ज़्यादा हैरान मत होइएगा। गौरव, अगर बात की जाए तो बॉलीवुड में भी 2 देवदास हैं जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर देवदास बन जाए। आपकी फेवरेट कौन है? शाहरुख और नहीं, उनका कंपैरिजन करना बड़ा गलत होगा क्योंकि एक 1955 की फिल्म है और एक 2000 कुछ की फिल्म है। और जो बिमल रॉय ने ब्लैक एंड वाइट में रिक्रिएट किया कलकत्ता, उस दौर को दिखाया जो अमीरी गरीबी दिखाई, और जो भंसाली साहब करते हैं वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे उनको। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस बिमल रॉय वाली है, पर वो मैं एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ, मैं कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। मुझे उसमें ज़्यादा ट्रेजेडी महसूस होती है। और कहीं मेरी शुरुआत वहाँ से, मैंने सोचा था कि मैं शुरुआत वहाँ से करूँगा, और फिर पहले दिन ही सर ने मुझे 2 थप्पड़ मारे और कहा कि खबरदार जो तुमने कोई रेफरेंस रखा। और हम वही केजी में पहुँच गए वापस। तो अब हम अभी क्लास 4 में हैं और अगले 1 महीने में होपफुली ग्रेजुएशन तक पहुँच रहे होंगे। जब तक आप नहीं, मैं कह रहा हूँ जब तक लोग हमको देखने आए तब तक होपफुली ग्रेजुएशन तक पहुँच रहे। थोड़ा रिस्क भी लगता है कि आज लोग थिएटर्स को उतना इंटरेस्ट नहीं देते जितना फीचर फिल्मों को देते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है बिकॉज थिएटर गोइंग ऑडियंस जो हैं वो बहुत सारी है एंड पीपल लव वॉचिंग जो लाइव का जो मज़ा है, द पैशन, द एनर्जी इन द लाइव ऑडियंस इज टोटली डिफरेंट दैन इन द फिल्म्स। तो नहीं, ये बिल्कुल गलत पॉइंट है। लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं। इनफैक्ट मुझे ये लग रहा है, और मैं ये बहुत ही स्ट्रांगली कह पाऊंगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थिएटर कर रही हूँ कुछ पिछले 5 सालों से। थिएटर नाटक देखने आने वाले लोग जो है उनको इस बात की इतनी ज़्यादा वैल्यू है कि हम लोग सामने बैठकर एक एक्सपीरियंस ले पा रहे हैं। जैसे आप अगर देवदास की बात की जाए तो देव पारो नदी पर है तो उनको लगेगा कि हम भी उनके साथ नदी पर हैं। इसकी वैल्यू है, रियल एक्सपीरियंस है वो। आप हाथ बढ़ाकर किसी को छू पाएंगे, इतना रियल है जिसकी वैल्यू है ऑडियंस को। और ऐसा कतई नहीं है कि ये कम हो रहा है। अपनी अपनी मीडियम की अपनी अपनी एक पहचान है, मुझे लग रहा है। आप ऐसे हाथ बढ़ाएंगे तो मैं आगे छू लूंगा आपको, ऐसी बात नहीं है। बहुत लड़कियां आने वाली है। जो पॉइंट सचमुच है जो मैं इंडोर्स करना चाहता हूँ वो ये कि दुनिया भर में ब्रॉडवे स्टेजेस होते हैं, थिएटर होते हैं, जो अगर आप कभी उन शहरों में, उन देशों में जाएं तो आप कई डॉलर, कई यूरो खर्च कर स्पेशली वो प्रोडक्शंस देखने जाते हैं जो सालों साल, दशकों तक चलती हैं। वो प्रोडक्शंस, एक्टर बूढ़े हो जाते हैं पर वो प्रोडक्शन चलती रहती है। बिकॉज थिएटर का जब वो इस स्केल पे होता है तो वो मज़ा है। और मैं बहुत खुश हूँ कि इंडिया में वो शुरुआत हुई है, और मैं बहुत खुश हूँ कि इस स्केल पर, इस खूबसूरती के साथ इस किस्म की प्रोडक्शन जब लोगों के सामने आएंगी तो मुझे लगता है कि यहाँ भी ऐसा होगा। लोग मुंबई जब घूमने आएंगे तो वो कहेंगे देवदास देखने ज़रूर जाना है। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। मुद्दे पे आपने काम किया है देवदास जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? बस ये खूबसूरती बरकरार रहे। 16 से लेकर 25 तक जो पहला सीज़न है और आप सब आए हैं, और ये बड़ा मज़ेदार जर्नी है।
और मैं ये चाहता हूँ कि इसमें उमंग सर भी हैं, अश्विन सर हैं, सब हैं, आप सबका आशीर्वाद है तो ये जर्नी उतनी खूबसूरत रहे, चलती रहे, मेहनत चल रही है और वो ट्रांसलेट करे, बस मेरी। सर कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्योंकि देवदास हमेशा लिखा गया चंद्रमुखी तक खत्म हो जाती है, तो आपने बताया उसके आगे की स्टोरीज भी है। वो मैं आपको शो जब आप देखेंगे। दर्शकों को मिल जाए तो थोड़ा कुछ क्लू दे दें आप, कुछ क्लू। नहीं, क्लू तो मैंने आपको दे दिया कि ये कहानी के उसके दो चीज़ें हैं कि चंद्रमुखी का क्या हुआ और पारो का क्या हुआ, तो वहाँ से ही पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई उस पॉइंट ऑफ व्यू से। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमने नॉवल का जो क्लासिकल जोन है वो हमने बरकरार रखा है, हमने उसको छेड़ने की कोशिश नहीं की, मॉडर्नाइज करने की कोशिश नहीं की, सिर्फ कुछ सवाल थे एज अ रीडर और ऑल्सो एज अ फिल्म वॉचर। मैंने सहगल साहब वाली फिल्म भी देखी थी, दिलीप साहब वाली भी देखी थी, और बचपन से लेकर अब तक ये पूरी जर्नी रही, मंसारी साहब वाली देखी और कई बार देखी हैं सारी फिल्में। और ये नॉवल मैंने तकरीबन 4-5 बार पढ़ी थी, और जब लिखने बैठा था तो एक बार फिर पढ़ी, तो ये सवाल आया कि उनका क्या हुआ, वो जवाब आपको थिएटर में दूंगा। सर क्या ऐड करना चाहिए, किस तरह जुड़े? हमारा योगदान तो इतना ही है कि जो ये लिखते हैं उसको बड़े पर्दे पर, मतलब जैसे थिएटर, सिनेमा नहीं लेकिन थिएटर भी है, वहाँ कैसे दर्शाया जाए और सेट्स ऑप्युलेंट करना, बिकॉज एक स्टोरी इतनी लार्जर देन लाइफ है तो हमारे सेट्स भी उतने लार्जर देन लाइफ होने चाहिए। एंड पता है कि पारो का घर होगा, देवदास का घर होगा, चंद्रमुखी की जो हवेली होती है वो जो जहाँ डांस करती है वो होगा, लेकिन उसमें नया क्या है, तो नयापन लाने की कोशिश की है। एलईडीज़ के क्या होगा, सेट्स अंदर बाहर, थिएटर का एक मज़ा अलग होता है कि सेट्स ऊपर से आ सकते हैं, साइड से आ सकते हैं, तो वो सब ध्यान में रख के ही मैं इनको चुनौती देता हूँ कि मेरे सेट्स ये है, अब दिखाओ आप इसमें सीन्स कैसे डालोगे। तो हाँ, उनको जो चाहिए रिक्वायरमेंट वो तो हम करते ही हैं, लेकिन फिर ये होता है कि मेरे में जो छोटा सा कीड़ा है, जो स्टेज का कीड़ा, वो जाग जाता है कि चलो ऐसे नहीं तो ऐसे करते तो कैसे लगेगा। जैसे एक छोटा सा एक ट्रेन सीक्वेंस जो है, जो हमेशा रहा है हर देवदास के इसमें मूवीज़ में रहा है, तो यहाँ हमने कोशिश की कि यार सेट इतना बड़ा बना देंगे, जाएगा कहाँ आएगा कहाँ, और सिर्फ 1 मिनट के लिए यूज़ हो रहा है तो वर्थ नहीं है, तो हम कैंसिल करने वाले थे। लेकिन इन्होंने देखा नहीं सेट बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो चाहिए, ये कैसे करेंगे। फिर बाद में या इनको जाके कन्विंस करना, इतना बड़ा डब्बा बनाने वाले हैं जो घूमेगा, ये करेगा। मैंने थोड़ा पट्टी पढ़ाई की, ऐसे आ सकता है, ऐसे घूम सकता है, फिर पॉसिबिलिटी, हाँ आइडिया तो अच्छा है। तो सर जी गए वापस, और वापस बोला कि मैं तो इस पर गाना करूँगा, उसके छत पर बिठाऊंगा, मतलब ये सब बोलना नहीं चाहा, लेकिन बहुत अच्छा एक तालमेल जो हुआ कि सेट से ओरिजिनेट हुआ या आइडिया पहले आया, वैसे तो तालमेल अच्छा हो रहा था। उस हिसाब से हम कहना चाहते हैं कि हम सब कर चुके हैं, तो हम एक दूसरे को छाटना चाहते हैं कि इन्होंने इतने सारे साल में अश्विन करते आए थिएटर्स, अब नया क्या, तो नए की खोज में हम लगे पड़े हैं। एंड होपफुली देवदास विल आंसर एवरीथिंग एंड इट इज़ ऑप्युलेंट। नहीं, पब्लिक है वो तो ऑब्वियसली, नाम ही इटसेल्फ इज़ अ ह्यूज सक्सेस, सबको पता है देवदास हिस्ट्री में है। जैसे हम देखना चाहेंगे कि इन्होंने इसको कैसे नए तौर से दिखाया, ये है कोशिश। सर आप क्या कहना चाहेंगे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये प्रोडक्शन को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि ये ट्रैवल कर सकता है। हमारा टारगेट है 500 शो करनी है, इनको अलग अलग लैंग्वेज में हम लोग टेलीटाइप कर रहे हैं, जिस हिसाब से डिज़ाइन हुआ है। इनफैक्ट सेंटर जो ऊपर मेन सेट का है, ऑपरा स्टाइल में जो टेलीटाइप है, वहाँ हम लोग कर रहे हैं, तो कोई भी जो शो देखेगा वो अंग्रेज़ी में पढ़ सकता है, या चीनी में, या रूसी में, या फ्रेंच में। तो वो उस हिसाब से हम लोग ने ये प्रोडक्शन को तैयार किया कि इट ट्रैवल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज हमारा एक ही मकसद है। इंटरनेशनली प्रोडक्शंस हमारा देश में इज़ नॉट माई फर्स्ट प्रेफरेंस। व्हाट इज़ आवर कल्चर, एंड इफ़ यू से UK हैज़ विलियम शेक्सपियर, वी हैव Sarat Chaturvedi, who is the writer, such rich culture. We should show the world what we can do. We're very proud of our culture, and people in the world need to see this. Let our people here see it. I think इसका सक्सेस इंटरनेशनली बहुत होगा। तो उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग करें कि इनका जो सेट्स भी बनाया है, हम लोग ने बैठ के डिज़ाइन किया कि उसको कैसा कोलैप्सिबल 3 कंटेनर में कैसा फिट करके उसको ट्रैवल करके उसको इंटरनेशनल UK हेल्थ सेफ्टी स्पेक्स के हिसाब से बनाया कि कल वो कोई भी इंटरनेशनल थिएटर वेस्टर्न हो या ब्रॉडवे हो, उसमें हम चला सकें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट सर।
एक तो कुछ खास बात है जो ये रोल मैंने चूज़ किया, मुझे ये जैसे मैंने कहा कि कौशल्या जो देवदास में थी, आज मैं एक पहली कलाकार हूँ मैं जो फिल्म में भी कौशल्या और थिएटर में भी कौशल्या का रोल कर रही हूँ मैं। तो और दूसरी एक बात, इतना बड़ा प्रोडक्शन मैंने नहीं किया है जिसका मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था। नाटक मैंने बहुत किए हैं, लेकिन जो रेगुलर नाटक होते हैं उस तरह के नाटक, बट ये नाटक मैं हमेशा जब लंदन में जाती थी, घूमती थी, तब मैं जब नाटक उनके देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि वाह, वो व्हाट अ प्रोडक्शन, ग्रैंडयोर, इतना ये सारा अब हो रहा है अपने यहाँ पे। और आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि मैं उसकी उसमें एक भाग ले रही हूँ, मैं एक किरदार कर रही हूँ। इतने बड़े इसका जो शुरुआत अभी हुई है ये सब बड़े नाटक्स की, नो दिस काइंड ऑफ थिंग, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। बिसाइड्स नाटक का एक मज़ा और होता है, हर कलाकार यही बोलता है, नाटक का एक मज़ा और होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी हर किसी को, मतलब ना ही सिर्फ एक्टर को बट टेक्निकल लोगों को, साउंड, लाइट, हर चीज़ें बहुत ज़्यादा 2-2.5 घंटे बिल्कुल अटेंशन कहीं इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो जब इतना बड़ा प्रोडक्शन करते हो आप तो ज़रा सी भी गलती पकड़ी जाती है। जितना बड़ा स्टेज उतनी बड़ी गलतियाँ, उतनी बड़ी उसकी चर्चा, तो ज़रा सा भी कुछ हो तो पकड़े जाएंगे। तो सबके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है और दैट इज़ अ चैलेंज, यू नो। नहीं तो कुछ चीज़ें अरसे बाद थोड़ा लाइटली लेना शुरू करते हैं, एक्टर सीनियर हो जाते हैं हमारे जैसे, तो हो जाएगा, कर देंगे, उसमें क्या है, ऐसे हो जाता है। यहाँ पे वो नहीं चलेगा, सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वेरी अटेंटिव। हमेशा कहा जाता है कि एक्टर मीडियम है, इतनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है? नहीं, बहुत ज़्यादा, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा, बिकॉज क्या है, इसमें रीटेक का सवाल नहीं ना, वो एक बड़ा चैलेंज है, रीटेक का सवाल नहीं। अगर लेकिन थिएटर का एक उसूल है, भूलना अलाउड है, पकड़े जाना अलाउड नहीं। तो अगर आप उस वक्त मैनेज कर सकते हैं बगैर ऑडियंस को समझे तो देन यू आर ऑल राइट। सो थिएटर आपकी हर शो पे परीक्षा है, और जितने आप शोज करेंगे उतनी परीक्षा है। तो हाँ, कई बार होता है मराठी थिएटर में। बाप रे बाप। ये अभी हाल ही में हम नाटक कर रहे थे, मोहन जोशी और मैं, मराठी नाटक था। तर माझी आई तिचा बाप, कॉमेडी था, शुक्र है कॉमेडी। और मोहन जोशी एक बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, और उनके चेहरे पे ना एक स्माइल आती है, तो स्माइल उनकी देख के मुझे इतनी हंसी आती थी। और मेरा ऐसा, मैं उनके ऊपर बहुत गुस्सा करती थी, तो उनका चेहरा मैं उनको सामने देखती नहीं थी, उनके सामने मैं देखूंगी तो मैं हंस पड़ूंगी। तो एक बार ऐसे हुआ कि मेरी नज़र उनसे मिली और वो हंस पड़े, और मेरी आई कुड नॉट स्टॉप लाफिंग। मैंने एग्जिट ली, फिर इन्होंने स्टेज पे मैनेज कर लिया। फिर मैं थोड़ी 10 मिनट, आई मीन 2-4 सेकंड के बाद मैं वापस आ गई स्टेज पे। मैंने उसको देखने, आई डोंट वांट टू लुक एट हिम ओनली। ये कई बार होता है, हर कलाकार के साथ होता है, भूल जाते हैं बहुत टाइम, ये सब होता है। ये तो मज़ा है थिएटर का। थिएटर करते हो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ इम्पोर्टेंट रखती है? टाइमिंग क्या? नहीं, थिएटर में आपका चेहरा नहीं नज़र आता, आप गले से एक्टिंग करते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज नज़र आती है, बस ये 2 चीज़ें नज़र आती हैं। गले पे आवाज़ आपका एक्ट करता है, चेहरा सिर्फ फर्स्ट 3-4 रो में बैठे हुए लोग को दिखाई देता है, पीछे वाले लोगों को चेहरा नहीं दिखाई देता है। तो आपकी आवाज़ है वो एक्ट परफॉर्मेंस करेगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।